Hello, all of you. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Parth Wadhwa from IT department, going to explain you about the linear data structure in that the particular part that I am going to explain, that is Q. So Q is one that is also one type of a linear data structure, we can say. And now here we are able to see the definition of this particular queue. How what is the queue we are seeing here? That is what it is, a linear list that which permits the deletion to be performed on one end, at one end of the list, and insertion on the other end, that is called a queue, we can say, right? सो दोनों के लिए अलग अलग एंड्स है, जहाँ से इंसर्ट हो रहा है वहीं से डिलीट होगा ऐसा नहीं है. जहाँ इंसर्शन एक एंड पे होगा तो डिलीशन दूसरे एंड पे होगा. So this is the thing that is that queue is following the particular part, that is FIFO, that is first in first out. First in first out का मीनिंग ये है कि जो सबसे पहले अंदर डेटा इंसर्ट किया है वही सबसे पहले बाहर, मतलब you have to delete that one first, or we can say first come first serve basis, we can say, right? So information is particular processed in such a manner like the FIFO or FCFS. So here we can see the example. So here the first thing, that is queue, here it is given, we can see here this is a queue, right? So when it is empty, so first one by one the data is inserted now. So how it is inserted, that we have to see here. So what we have to do, we have to insert the data from this particular end. So this end, that is blank, that part is given, so data will enter one by one from here. So first part that is entered, that is the value 10 that is entered. So after that the next value entered, that is going from here, that is 8. After that again, then these arrows are given one by one to follow the particular steps. So after this 8, then again the 5 is inserted, then after the 80 is inserted, then we have to go downwards. Here we can see here that particular part, that 50 is inserted here from this side. Then after the particular last value, that is 100. So the spaces that are available, that is 6. So 6 different values we have inserted one by one like this from one end. So here, so this end we are inserting the values, we can say, right? So here now if the particular part, so here we can be able to see this, so that how so this particular part, now we are able to see one by one how it is removed. ठीक है ना? तो सबसे पहले जो अंदर आया था हम लोगों ने देखा था, तो सबसे पहले जो वैल्यू थी दैट इज व्हाट 10, राइट? सो इट विल बी, अब इंसर्ट कहाँ से हो रहा था? इस पर्टिकुलर एंड से, यहाँ से एंटर हो रहा था, तो बाहर कहाँ से जाएगा? इस एंड से बाहर जाएगा कोई भी वैल्यू. तो सबसे पहले जो वैल्यू एंटर थी वो 10 थी, तो 10 सबसे पहले जो एंटर हुई है वो सबसे पहले बाहर जाएगी, तो 10 विल बी रिमूव फर्स्ट. After that 8 will be removed from this end. Then after we can see here, so 5 will be removed from this end. Then next one is 80, so 80 will be removed from this end. Then 50 will be removed from this end. Then at last here we can see that 100 is removed from this end. So here we can see the finally at last we can see this particular queue is empty, so no elements are there now in the queue after removing all the elements, we can say. After this, so this is all about the queue, we can say, general introduction part. So now this is having as stack is having only one and one pointer to indicate only the top element. So here are the two pointers are there. One is the front and another is the rear. So front is the end of the queue where the deletion is to be performed. So here we can see, तो डेटा जो भी एंटर हो रहा था वो यहाँ से हो रहा था, राइट? एरो भी दिया हुआ है, ठीक है ना? वी आर सीइंग द एरो हियर, राइट? सो इंसर्शन इज डन इन दिस वे, and the particular when the particular part is removed, so whatever the first element will be there, that will be removed one by one here. So deletion will be from this end. So जहाँ से डिलीट हो रहा है तो वो पार्ट कौन सा है? वो पॉइंटर कौन सा है? वो फ्रंट है, ठीक है? और जहाँ पे इंसर्ट होगा तो वो पार्ट कौन सा होगा? दैट विल बी रेयर पार्ट, राइट? सो हियर, so we can see that the front is the end of the queue
from that the deletion is to be performed, and the rear is the end of the queue at which the element is to be inserted, we can say. So here the insertion operation is called NQ, we can say, and the deletion operation here we can say that is a DQ. ठीक है, जैसे स्टैक के अंदर पुश और पॉप यूज कर रहे थे हम लोग इंसर्ट और डिलीट के लिए, वैसे क्यू के अंदर हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन को एन क्यू बोलते हैं और डिलीशन ऑपरेशन को डी क्यू बोलते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ, दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द क्यू, एंड वेयर इट इज अप्लाइड नाउ वी विल सी दैट. So in the queue of people at any service point such as ticketing we can say etc. जैसे मान लो कि कोई मूवी की टिकट या फिर कोई मतलब जैसे मूवी की टिकट ही मान लो, चलो ठीक है, मूवी की टिकट लेने के लिए आप लोग सपोज यू आर नॉट डूइंग द ऑनलाइन बुकिंग, यू आर गोइंग द एट द पर्टिकुलर प्लेस, and if you are trying to go there for the booking that ticket, so what you will do, you will ट्राई टू वहाँ पे क्या होगा, जो भी फर्स्ट होगा तो वो सबसे पहले फर्स्ट विंडो की साइड जाएगा, टिकट विंडो के पास, ठीक है. सेकंड आएगा वो उसके पीछे लगेगा लाइन में, दैट विल बी द क्यू पार्ट. देन थर्ड आएगा वो उसके बाद लगेगा, फोर्थ आएगा उसके बाद लगेगा, ऐसे वन बाय वन. सो जो भी नए आते जाएंगे वो वन बाय वन वो क्यू में और लाइन में लगते जाएंगे, ठीक है. सो दे विल वेट फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है ना, टू बी कंप्लीटेड. तो फर्स्ट जैसे पूरा होगा तो वो सबसे पहले अलग हो जाएगा, सो दैट विल बी रिमूव फर्स्ट. फिर सेकंड का काम होगा तो सेकंड रिमूव हो जाएगा, थर्ड का काम होगा थर्ड रिमूव हो जाएगा. तो इस तरीके से जितने जने लाइन में लगे हैं तो वन बाय वन, तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले बाहर जा रहा है, सो दैट इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फॉलोड हियर. वैसे ही द क्यू ऑफ द एयरप्लेन्स वेटिंग फॉर लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वी कैन से, ठीक है, द क्यू ऑफ द एयरप्लेन्स फॉर लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. सो तो क्यू प्रोसेस जो सबसे पहले जो जैसे मतलब जो बाहर गया वही सबसे पहले, मतलब जो सबसे पहले अंदर आया वही सबसे पहले बाहर जाएगा, राइट. सो दैट इज द क्यू ऑफ द एयरप्लेन्स दैट इज वेटिंग फॉर द लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वी कैन से. अब जैसे मान लो कि मतलब कि वो एक क्यू, उसमें भी मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस होने बनाया होता है, टाइमिंग वाइज टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड किए होते हैं कि जैसे मतलब कि फर्स्ट मतलब एक साथ दो दो तीन तीन प्लेन तो मतलब एक साथ लैंड नहीं हो जाएंगे ना, राइट. सो लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर देयर एज पर द टाइम स्लॉट्स आर गिवन टू देम, डिवाइडिंग seeing that the particular distance or a particular timing to reach there, all such things are seen, and in the on the base of that they are seeing one by one. जो सबसे पहले अंदर गया, राइट, वही सबसे पहले बाहर जाएगा, उस हिसाब से वो लोग उस चीज़ को मतलब लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, एंड देन द पर्टिकुलर एयरप्लेन्स आर लैंडिंग वन बाय वन, राइट. Then the next thing is, next application is given here is the queue of processes in OS. तो OS के अंदर जो प्रोसेस हो रही है तो उसमें मतलब जैसे आप कोई सिस्टम ओपन करते हो, सिस्टम जैसे ऑन कर रहे हो तो डायरेक्टली विंडोज़ की स्क्रीन ओपन नहीं हो जाती. तो सबसे पहले जो मेन प्रोसेसिंग होती है उसको लोडिंग प्रोसेस होता है. तो वो लोड होने के बाद जब तक वो पूरी तरीके से वो ऑन नहीं हो जाता, फिर लॉगिन प्रोसेस होता है, लॉगिन के बाद फिर ऑन, फिर स्क्रीन सामने आती है, फिर आप लोग प्रोसेस करते हो. सो वन बाय वन द पर्टिकुलर प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अदर प्रोसेस टू बी हैपन, राइट. तो वन बाय वन होता है, तो एक एक करके जैसे जैसे प्रोसेस होती जाती है तो वैसे वैसे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है, right. So this is all about the queue we can say. So queue is also used by the operating system for job scheduling. तो मतलब अगर कोई जॉब शेड्यूलिंग मतलब कोई प्रोसेस अगर कंप्लीट करना है तो वन बाय वन, तो उसके लिए भी शेड्यूलिंग पार्ट हो सकता है कि कौन सा प्रोसेस कब करना है, पहले कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है. तो उसमें ये होगा कि पहला प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं कर सकते. तो पहला प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीट होकर निकल जाएगा, तो दूसरा प्रोसेस फिर स्टार्ट होगा. तो इन दिस वे द जॉब शेड्यूलिंग इज डन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हेन द रिसोर्स इज शेयर्ड among the multiple consumers we can say, example in case of printers the first one is to be entered, is the first to be processed we can say. हाँ वो चीज़ है. तो प्रिंटर में अभी हम लोग देखते हैं जैसे रिसोर्स अगर शेयर किया हुआ है बहुत लोगों के साथ, तो बहुत लोगों को अगर प्रिंट आउट, अगर उसके अंदर प्रिंटर के अंदर कुछ प्रिंट आउट निकालना है तो उसमें मोर देन वन पर्सन इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट फॉर द प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट,
तो उसमें वन बाय वन वो क्या होगा, वो जैसे फर्स्ट, जैसे जिसने मतलब रिक्वेस्ट सेंड करी तो फर्स्ट वाला प्रोसेस होगा, जैसे सेकंड करी तो सेकंड, उसके जब तक वो फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं होता तब तक सेकंड वाला वेट करेगा, फर्स्ट वाला कंप्लीट होके निकल जाएगा उसके बाद ही सेकंड वाला स्टार्ट होगा. सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्यू वी कैन से, right? So now next thing is when data is entered asynchronously, right? So data not necessarily received at the same rate as sent, so between the two processes we can say. So here the examples are input output buffers or pipes we can say, or file input also we can say, input output. So these are what the data that in, these are the examples in which the data is transferred is asynchronously. ठीक है ना. तो जो डेटा जो सेंड हुआ है वो सेम मतलब उसी मतलब स्पीड में वो रिसीव होगा, दैट इज नॉट necessary. So that is done between the two processes we can say. So here the queue is used in BFS we can say, right? BFS algorithm. BFS algorithm में भी ग्राफ में भी यूज़ करा जा सकता है. तो वन बाय वन इट इज़ हेल्प, तो विजिटिंग के लिए यूज़ करते हैं वन बाय वन. एक एक नोड को अगर एक एक पॉइंट को एक एक वर्टेक्स को अगर विजिट करना है, सो इन दैट केस तो एक साथ तो सारे नोड को विजिट नहीं करेगा, ट्रैवर्स नहीं करेगा वो. सो उसमें क्या करेगा, तो वन बाय वन इट इज़ विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड. ठीक है ना. सो एक जो जाएगा उसके बाद दूसरा होगा. सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्यू वी कैन से. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज इन नेटवर्किंग टू हैंडल द कंजेशन पार्ट. ठीक है. तो कंजेशन मतलब जैसे बहुत सारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग का ज्वाइन हो गए, तो उसमें वन बाय वन सब लोग नेटवर्क से कनेक्ट होकर कुछ रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं. तो एक साथ बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड करी है, तो जो फर्स्ट जिसने करी होगी तो वो फर्स्ट प्रोसेस होगी, सेकेंड जिसने करी होगी उसकी सेकेंड प्रोसेस होगी. तो वन बाय वन इस तरीके से रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है. तो इस तरीके से क्या होता है, कंजेशन हैंडल करते हैं नेटवर्क में. So that is also the part of queue as it is handled one by one, right? Now how to process this enqueue part, that is inserting of an element into the queue. So here we are able to see this enqueue, that is the method for inserting the any element in queue. This queue is that is the name of the vector that for queue here we have taken. Now the front end part, front pointer is there, so for that f is taken, rear part is there, for that r part is taken, and that is the total number of elements that can be inserted into the queue, and y, that is the particular element that is going to be inserted in queue, right? So this procedure is inserting y at rear end. तो insert जो होगा वो rear end में होता है, वो तो पता है हम लोगों को. और जो डिलीट होता है वो किस में होता है, दैट विल बी एट द फ्रंट एंड, राइट? सो हियर, सो रेयर एंड में मतलब सबसे पहले इंसर्ट होगा. सो दैट इज द क्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर क्यू कंटेनिंग n एलिमेंट्स हियर. सपोज हियर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे 3 एलिमेंट है, सो n इज इक्वल टू 3 वी कैन से. So f is the pointer to the front element and r is the pointer to the rear element here we can say. So यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट कुछ भी एंटर हुआ है तो रेयर पार्ट में होगा. तो रेयर पार्ट में सबसे पहली वैल्यू अगर एंटर हुई होगी तो वहाँ पे 5 हो जाएगी, राइट? तो 5 विल बी द वैल्यू फॉर रेयर. ठीक है. तो सेकेंड वैल्यू हो जाएगी तो रेयर में इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि फ्रंट में से डिलीट होता है. ठीक है ना. तो 5 तो उसमें रेयर में इंक्रीमेंट होगा और न्यू वैल्यू 20 एंटर होगी. उसी तरीके से फिर 80 दिया हुआ है सपोज यहाँ पे. ठीक है. तो 80 वैल्यू जो है वो उसके 20 के बाद रेयर में अगेन इंक्रीमेंट होगा, एफ एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. तो 80 यहाँ पे एंटर होगा. तो इस तरीके से पर्टिकुलर पार्ट फुल होता है. बट कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू चेक the first of all we have to follow the algorithm here. So that algorithm is what we have to check about the rear part. So we have to first of all we have to check whether it is overflow or not. Overflow मतलब वो पूरा का पूरा फुल है या नहीं है. ठीक है ना. कि फुल होगा तो क्या होगा, फुल होगा तो उसमें हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, दैट इज व्हाट the r is greater than equal to n, right? N is the number of elements and r is the particular pointer that is pointing towards the rear end. ठीक है ना. So if it is greater than equal to n, then we have to just write the error message that is q is overflow. Else we have to go towards the next step, that is
इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर। ठीक है, अगर रेयर वाला मतलब जो ओवरफ्लो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आर के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, सपोज आर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो से वो वन हो जाएगा, अगर वन होगा तो वन से टू हो जाएगा, राइट। तो न्यू मतलब न्यू स्पेस उसको प्रोवाइड हो जाएगी। सो देन वी हैव टू इंसर्ट दैट वाई value, so whatever there will be in the place of y, that we have to place or assign in this particular qr। ठीक है ना, that qr means that q in the q that is pointed by the r, new value of r, that will be given this new value, right? So here, so is the point of front pointer, then we have to check whether the front pointer properly set or not. So for that what we have to check if whether f is equal to 0 or not, right? If f is equal to 0, then we have to assign f is assigned as 1, again, so then we have to return। So here, तो प्रॉपरली सेट और नॉट, तो अगर f की वैल्यू पहले से स्टार्टिंग में तो ज़ीरो होती है तो ज़ीरो से वो वन पे आएगा, राइट। अगर कोई वैल्यू अगर इंसर्ट होती है सो दैट वी हैव टू रिप्लेस बाय वन। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो एम्प्टी होगा, सो दैट विल बी आर, एफ और आर दोनों की वैल्यू ज़ीरो होगी, राइट। सो नो, सो हियर वी कैन सी हियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे f की वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब जब जैसे इंसर्ट हुई तो f और r दोनों की वैल्यू वन हो जाती है। 20 जैसे इंसर्ट हुआ तो f की वैल्यू तो वन रहेगी लेकिन r की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, राइट। तो 20 इंसर्ट करने से पहले r की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा 2, उसके बाद वैल्यू इंसर्ट होगी 20। तो उसके बाद अगेन अगर इंसर्ट करना है तो 80, तो सबसे पहले r की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 2 से 3 हो जाएगी, उसके बाद वैल्यू जो इंसर्ट होगी दैट विल बी 80, वी कैन से, राइट। सो हियर, so at the starting we can say n is equal to 3, then r is equal to 0 and f is equal to 0, that means what, the any the value was not there, right। तो उसके अंदर कोई वैल्यू अगर मतलब सबसे पहले तो हम लोग इंसर्ट करेंगे दैट इज f इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 3, हम लोगों को फाइनल चाहिए, राइट। तो एन क्यू जब हम लोगों ने किया तो एन क्यू में यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट व्हाट पार्ट इज गिवन, दैट फर्स्ट पार्ट इज q, देन f, देन r। ठीक है, क्यू एफ आर तो पता है, क्यू इज अ पर्टिकुलर क्यू इन विच वी हैव टू इंसर्ट सम वैल्यू, एफ इज अ फ्रंट एंड, आर इज अ रेयर एंड, and n is equal to 3, we can say total elements are 3, total spaces are 3, and y is equal to 5, that is a value to be inserted first, right। So here when we are inserting we have to, what we have to do, f is equal to 1 and r is equal to 3, here it is given, right। So now what we have to do, we have to insert that value, so 5 will be inserted, that r will be equal to 1 now। Now after that एन क्यू पार्ट अगेन दिया हुआ है जिसमें y की वैल्यू 20 है तो r की वैल्यू 2 हो गई, राइट। सो एन क्यू पार्ट अगेन दिया हुआ है तो y की वैल्यू 80 हो गई, सो y की वैल्यू 80 मतलब r की वैल्यू 3 हो गई, राइट। सो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर r इज इक्वल टू 3 इस तरीके से आया। अब अगर इसमें फिर से अगर वैल्यू इंसर्ट करने जाऊंगा दैट इज y इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसके बाद तो स्पेस है नहीं, तो r इज इक्वल टू 3 जैसे हो जाएगा तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, right। So here this condition is satisfying, so we have to just write that q is overflow, so this particular statement will be written that q is overflow, right। So this is how the particular insert part is done, and this much is okay for today's lecture। So next, in the next I will show you how to delete the q in any element in q, okay। So thank you for today's lecture, today's video for this data structure, and thank you for watching our video। Please like it, share it, and don't forget it to subscribe it। Thanks a lot।